Good afternoon, viewers, and welcome to this special report coming to you live from the streets of Nuh in Haryana. I'm talking about the Nuh constituency, which was hit by riots last year in July. Right now, viewers, here if you can see, in 2024, it is a contest between the Congress's incumbent candidate Aftab Ahmed, the BJP's Sanjay Singh, the Aam Aadmi Party's Rabia Kidwai, and INLD's Tahir Hussain. Interestingly, viewers, while coming here, a lot of people told me that it seems to be a direct contest this time between the Congress and the INLD, while the BJP does not have more at stake. This is quite surprising because if we look at the 2019 Haryana election results, it was the Congress's Aftab Ahmed, of course, who had won from here and was number one, while it was BJP's Zakir Hussain who was at number 2 position right here in Nuh. Of course, at that time, Zakir Hussain was the BJP's candidate, which is why he managed to win. The reason I say that is because this is a constituency which around 80% Muslim population exists, while there is only around 20% Hindu population. Remember, viewers, last year, as I said, the riots took place here and there was a clear attempt to polarize on religious lines. Why did these riots happen last year? The riots happened because of a variety of reasons. Number one, there was an objectionable post which was shared by a Bajrang Dal activist right here within the constituency of Nuh, activist which was shared from Ballabgarh, which is the area within Nuh itself. Then, viewers, apart from that, Monu Manesar, a very controversial figure, was seen to be one of the biggest reasons for the riot. Why? Because he was someone who was responsible for the death and murder of two Muslim men earlier that year here itself in Nuh. But he had made a proposal that he will be part of the Brij Mandal Abhishek Jal Yatra, which took place here last year. The Yatra, of course, viewers, the Yatra which I was speaking about is in memory of Lord Krishna, and it is done to seek his blessings. He was supposed to be a part of this Yatra, which he claimed, but he later backed out because he feared that because he would be there would be tensions. Then, of course, there was retaliation which took place from the Muslim side, who were very angry with the fact that he possibly was going to be there in this Yatra. But later on, when the Muslims had attacked, a lot of Hindus present here had gone to seek refuge in a temple, but later on they retaliated as well. So, viewers, there was clearly a huge communal battleground which took place last year. It will be interesting to see when we talk to people here whether the riots which took place last year still play on their minds or not. To conclude, viewers, I would only say that whatever information which I have given you about the riots last year is based on reports which are there in the media, both on the mainstream as well as digital media, and also due to some investigative sources which were following the investigation being done by the Haryana police and the government. With camera person Dhruv, Zati Sapra. नमस्कार दोस्तों, अभी फिलहाल मैं यहाँ पर नूह के कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद हूँ हरियाणा में, जहाँ पर अब की बार एक बहुत ही कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहाँ पर फिलहाल कांग्रेस के आफ्ताब अहमद है जो फिलहाल यहाँ के इनकम्बेंट कैंडिडेट है, और इनका मुकाबला इस बार बीजेपी के संजय सिंह और आपके राबिया किदवाई से होगा। हम यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करेंगे कि आखिर उन्हें क्या लगता है कि आखिर इस बार नूह में और पूरे हरियाणा में किसकी सरकार। तो भैया, हमारा सवाल पहला आपसे ये है कि यहाँ पे नूह में कौन जीतेगा आपके हिसाब से? क्या कांग्रेस ने जीतना चाहिए या बीजेपी? भैया, यहाँ पे इनोलो जीतेगी। INLD? हाँ, इनोलो मतलब ये जो चोटेला वाली पार्टी है, ये है बात। ताहिर हुसैन जीतेगा यहाँ से। ताहिर हुसैन? हाँ जी, हमने देखा था वो INLD ने यहाँ पर ताहिर हुसैन को कैंडिडेट उतारा यहाँ पे। हाँ, आप लगता है वो जीतेंगे? वो जीतेंगे यहाँ से 100% जीतेंगे, क्या 105% जीतेगा। तो जो यहाँ पे जो कांग्रेस के आफ्ताब अहमद है जो यहाँ पे इनकम्बेंट है, आप उनके काम से खुश ना हो? नहीं, उसने कुछ काम ही नहीं किया। उसने पार्टी बंदी, केस बनवाना थाने में, उसने ये काम किया और काम ही ना किया उसने। जी, काम करते हैं, पुलिस बनवाते हैं, केस बनवाते हैं। हाँ, केस बनवाते हैं जी। तो इस बार आप नूह की तो बात हम कर रहे हैं, पूरे हरियाणा में क्या चाहते हैं? इस बार बदलाव होना चाहिए या ट्राई ना करिए? हम तो यहाँ से करिए नो ट्राई। अच्छा, अपने विधायक ट्राई कर रहे हैं? बोल रहे हैं जी चौटाला साहब आवे जी, अब सीएम होने चाहिए। चौटाला साहब JJP की? सॉरी, माफ कीजिए, इनोलो की। अच्छा, तो आप चाहते हैं ना बीजेपी ना कांग्रेस, चौटाला साहब है INLD की सरकार जी। विशेषकर देखिए, हम नूह, क्योंकि आप लोग भी यार नूह से हम आपसे पूछना चाहते रहे। हम पढ़ रहे थे कि पिछले साल जी इधर दंगे हुए थे जुलाई के महीने में,
क्या आपके मन में अभी वो एक बात है, एक फैक्टर है जो प्ले कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि ये जगह जो है और आपका मन जो है आगे बढ़ चुका है? नहीं, ये साफ जगह है, यहाँ कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं, सारे इकट्ठे रहते हैं, सारे भाई हैं, हम हिंदू भाई भी हमारे हैं, हम भी भाई हैं, और बहुत अच्छे हमारे ताल्लुकात है। तो बाहर के लोगों ने यहाँ झगड़ा किया था आगे, हमारे आसपास के ना हिंदू ना मुस्लिम कोई भी झगड़ा नहीं चाहता। ना बाजार का, ना बाहर का, ना कहीं काम का, कोई झगड़ा नहीं है। किसी से कोई चिड़न नहीं है। हिंदू मुसलमान से कोई तासुब नहीं है। तो आपको लगता है कि तो आपको लगता है कि इस बार जो चुनाव है उसमें ध्रुवीकरण ना होगा, बल्कि केवल मुद्दे पर वोट डाला जाएगा यहाँ पे? जी जी। तो जो मान लीजिए आप कह रहे हैं कि यहाँ पे INLD जीतनी चाहिए, जो यहाँ पे ताहिर हुसैन जी है, आपके हिसाब से वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर उनको और काम करना चाहिए ताकि वो और आगे बढ़ जाए? वो निक पहल खड़ा हो जाए, जो अच्छा लग रहा है सबन्ना में, वो जीतेगा यहाँ। काम करेगा, वो काम करेगा, वो नया बालक है, वो काम करेगा। नहीं, मैं काम से पूछ रहा हूँ। देखिए, आपको क्या नूह में आपकी समस्या है? क्या यहाँ पे कौन सी समस्या है आपकी यहाँ पे? समस्या तो लाइट पाइट होटल की समस्या है जी। लाइट ना पहुंचे, आप आगे ही ना। जब किसान को पानी ना आ रहा, लाइट ना आ रही, होटल अच्छा। समस्या है जी। बेसिक आपको लगता है यहाँ पे बिजली पानी की समस्या अब भी है नूह में? जी जेबीटी बननी चाहिए अपने नौ में। जी 4-4 घंटे लाइट रह रही गाँव में, बाकी सर 24 घंटे खाली रह रहा है। जी, 20 घंटे जी। रहा है लाइट। जी। आप कुछ और कोई कहना चाहेगा कुछ यहाँ पे? तो यहाँ पे इस बार आपको क्या लगता है कि हम नूह में कहते हैं कि यहाँ की डेमोग्राफी के हिसाब से 80% यहाँ पर करीब मुसलमान आबादी है, 20% हिंदू है। तो आपको लगता है कि सब एकजुट होकर बदलाव चाहते हैं इधर? आज एकजुट हो, कोई तासुब नहीं है यहाँ पे, कोई अलग अलग छांटना नहीं है, सब इकट्ठे हैं जी। सारे इकट्ठे हैं, हिंदू मुस्लिम सारे इकट्ठे हैं, और ताहिर हुसैन जिताना चाह रहे हैं यहाँ से सारे। मेरे हिसाब से दोस्तों इनकी जो इन्होंने बड़ी बात की है, उन नेताओं के लिए संदेश है जो यहाँ पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे लोग सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर ही वोट डालना चाहते हैं। जिसके जिंदगी में अगर कुछ बदला तो जहाँ पर मौजूदा कैंडिडेट है उनको वोट डालेंगे, वरना वो उनके खिलाफ भी वोट करेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर जहाँ पे हम है अभी, ये लोग कह रहे हैं कि INLD ये चाहते हैं जीत जाए, लेकिन और अगर लोगों से बात करेंगे तो बड़ा देखना होगा कि बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना कि उनकी राय आखिर क्या रहती है। विद कैमरा पर्सन जिग्नेश सापरा। फिर से एक बार फिर से स्वागत है आपका। हम यहाँ पर और लोगों के साथ जुड़े हैं यहाँ पर नूह में। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आखिर उन्हें क्या लगता है कि यहाँ पर कौन जीतेगा। तो भैया सबसे पहला हमारा सवाल है, इस बार 2024 में से शुरू करो, उनसे शुरू करें? ठीक है। तो इस बार नूह में 2024 में कांग्रेस के जो आफ्ताब अहमद पिछले 5 साल से यहाँ पर MLA हैं, उनके खिलाफ बीजेपी के संजय सिंह खड़े हैं, आम आदमी पार्टी की जो राबिया किदवाई है वो खड़ी हुई है, और INLD के ताहिर हुसैन खड़े हैं। आपको क्या लगता है यहाँ से किसकी जीत होनी चाहिए इस बार? देखो जी, मैं तो ये कहता हूँ, यहाँ से भाई ताहिर हुसैन युवा कैंडिडेट हैं, युवा हैं, और युवा उसके साथ बहुत अच्छे जोर शोर से लगे हुए हैं। परिणाम तो अल्लाह का हाथ में, इंसान तो कोशिश कर सकता है। और जैसे यहाँ रुझान बढ़ रहे हैं, यहाँ कड़ी टक्कर है कांग्रेस और INLD भी थी, बीजेपी का यहाँ कोई जनाधार नहीं है। तो आपको लगता, तो आप जो पिछले साल जो कांग्रेस के जो MLA रहे हैं, क्या आप उनके काम से खुश ना हो? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है। तो जी गलत है, ये तो केस कास बनवावे जी। वह विनाश की बात करे, विकास की बात नहीं करता। विकास की बात ना करें? नहीं। और अब देखिए, हम ये कह रहे हैं कि और आप पूरे हरियाणा की अगर आप देखें तो क्या आप चाहते हो कि इस बार सरकार कांग्रेस की बने या बीजेपी की बने? किसकी सरकार चाहते हैं आप यहाँ पे? देखो जी, सरकार की तो ऐसी बात है, सरकार तो लंगड़ी सरकार आ रही है, मिली जुली आ रही है, स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिलेगा। किसी को ना मिलेगा? नहीं, हमारे हिसाब से तो। अच्छा, हमारा तो ये विचार। और ठेकेदार साहब, आप इनसे बात करें। हाँ भैया, आपसे देखिए पूछना चाहूंगा, जो मनोहर लाल खट्टर की सरकार थी, उन्होंने शुरू किया था परिवार पहचान पत्र, जिसमें हर परिवार की वो डिटेल लेकर वो कह रहे हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ देंगे। आपको उसका कोई फायदा हुआ पिछले जब से वो बनी है? उसका फायदा हुआ, खूब फायदा हुआ उसका भी। लाभ जी, उसमें किसानों के बीमे भी हुए हैं, जमीनों के, उसमें मुआवजा भी मिला है जो फसल गड़ी है। और यहाँ तो अपने मनोहर लाल जी ने बहुत काम भी किए हैं लोगों को, ऐसे ना है। मनोहर लाल यहाँ बम्बई एक्सप्रेस वे भी दिया सेंट्रल गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट जी। तो इससे काफी लोगों को यहाँ रोजगार मिले हैं। जमीनों का रेट यहाँ 5-4 लाख रुपए पर एकड़ का हिसाब था, आज यहाँ 1.5, 2 करोड़, 4 करोड़ की जमीन बिक रही है जी। तो फायदा तो हुआ ये बीजेपी सरकार से, सब नहीं हुआ उससे। तो जो परिवार पहचान पत्र आप मानते हैं कि उससे फायदा हुआ है आपको? आपको फायदा हुआ जी? हुआ है। तो कौन सी, अगर आप एक सरकारी योजना के बारे में बताएं जिसका लाभ आपको मिला है इससे? किसानों के लिए जी,
वे मिलती महीने वे आती है तो उनकी 2000 रुपये आते हैं जी। वो जो पीएम किसान सम्मान निधि आती है जी हाँ जी। और बहुत काफी है जो है फैमिली आईडी ये भी अच्छा काम है जी। अच्छा, इसी से किसानों से जुड़ी बात, हरियाणा सरकार ने एक और ये जो है चलाई थी, वो है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जिसमें वो कह रहे थे कि किसान डायरेक्टली जो है ना अपनी जो समस्या है सरकार को बता सकते हैं। वो क्या आपका फायदा हुआ है उससे? हाँ, उससे का फायदा हुआ किसानों को। उसमें वो ये चलाई है स्कीम, उसमें किसानों को बीज भी मिल रहा है, खाद भी मिल रहा है, सब्जी के बीज मिल रहे हैं, प्याज का भी, टमाटर का भी, और सब्सिडी वगैरह सारी चीजें मिल रही है उसमें। मिल रही है आपको? हाँ, पूरा फायदा हो रहा है उसमें। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस जो ठेकेदार उन्होंने कहा वो मिल रहा है आपको। और देखिए एक और चीज, देखिए हम नू में आ रहे थे ना, तो हम पढ़ रहे थे कि पिछले साल यहाँ पर दंगे हुए थे। एक साफ तौर पर दिख रहा था कि एक ध्रुवीकरण करने की कोशिश थी हर पार्टी के द्वारा। आपको लगता है कि जब आप वोट डालने जाएंगे तो दंगों की बात आपके मन में है अभी भी? आपको लगता है कि आप आगे बढ़ गए हैं? नहीं जी, दंगे की बात ऐसी जी, वे तो कुछ तथ्य है। यहाँ पर बहुत बढ़िया भाईचारा, हिंदू मुसलमान आपस में रहते हैं। वो टाइम तो अल्लाह ने निकाल दिया, उससे हम उभर गई में बात। वो तो कुछ तथ्य है लेकिन उससे अब खत्म हो चुका। अब यहाँ भाईचारा और यहाँ गंगा जमनी तहजीब चल रहे हैं, यहाँ भाईचारे की बात होती है। यहाँ पर दंगा अब खत्म हो गई। जो हुए तो वो मंजर गलत था लेकिन वो हुआ, वो अल्लाह ने सही कर दिया। ये है यहाँ भाईचारे से रहते, हिंदू मुसलमान हिंदू उनके हम जाते हैं, हिंदू मुसलमान भाई के माते, कोई ब्याह है, प्रोग्राम है, ईद है, बकरीद है, यहाँ सब भाईचारे से होता है। हाँ जी जी। तो आपको लगता है कि सब लोग यहाँ पर धर्म से उठकर मुद्दे पर वोट डालेंगे? मुद्दे यही है जी, सही है, विकास जी। तो खट्टर सीएम जी, बढ़िया सीएम आया जी हरियाणा में। इतने बिगर पर्ची खर्ची, खट्टर ठीक है, बीजेपी ठीक नहीं है, खट्टर ठीक है। खट्टर ठीक थे? हाँ, सीएम बढ़िया था जी हरियाणा की। अच्छा, 10 साल राज किया, बढ़िया सीएम। तो बिगर खर्ची पर्ची, मेरिट पे नौकरी थी। जी। आप लोग भी कुछ कहना चाहेंगे? आप भी? आप इनकी बात से सहमत हो?